Fine, very good morning. Today the chapter which we are going to do, that is, why do we need the parliament, right? This word parliament, you must have heard many a times. You must have even visited the parliament house sometime, right? Once, so we have just taken the students also on a trip to the parliament house, right? See, every time you must be going through this word. And many a times you must have heard also कि parliament का session चल रहा है and this decision has been passed in the parliament and so on, right? So ये parliament word जो है, you get acquainted with many times, right? So what is this parliament? Why do we need to have it in our country? What is its importance? So all these things we are just going to cover in this chapter, right? See, first of all, we must be knowing that how our country, it was under the British rule, right? Already in history, we are covering these chapters which are connected to the British rule, right? History हमने already 2 chapters कर लिए हुए हैं, trade to territory and the ruling the countryside, like how they came to the country as the traders, how they expanded their empire in the country, how they had started interfering in the internal affairs of the kings, right? And now they were having the administrative control also on our country. And we have already covered these topics, that how they had started exploiting the people of India. हमने ब्लू रेबेलियन पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में कि how the people were forced, how the farmers were forced to grow the indigo, and even when they were at loss, they were forced to do all these things. तो उस समय क्या था कि ये this span was of around 200 to 300 years. As an administrator or as a ruler, आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, they had been the rulers for around 200 or 250 years, right? उससे पहले क्या था, they were the traders. वो आए हमारे कंट्री में जरूर 1600 में थे, तब से वैसे ट्रेडर्स ही काम कर रहे थे. बट अगर हम रूलर्स की बात कर रहे हैं, तो रूलिंग जो उन्होंने स्टार्ट जो की थी, दैट वाज अराउंड 250 इयर्स, राइट? अब इतना जो टाइम पीरियड है, उसमें लोग जो थे हमारी कंट्री के, उनको इतना एक्सप्लॉइट किया जा चुका था दैट they were always under the stress, they were always under the threat of the British. उन्हें नहीं पता था डिसीजन मेकिंग क्या होती है, बिकॉज सारे डिसीजन जो है वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही ले रही है. ये तो बस सफरर्स थे. इंडियंस जो थे उस समय, दे वर जस्ट द सफरर्स. उनको बस फॉलो करना है कि जो भी डिसीजंस ब्रिटिशर्स ने दे दिया है, दे हैव टू फॉलो इट. नीदर दे वर हैविंग एनी से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, nor they could protest against what decision had been given by the people, or sorry, by the British. तो वो सिर्फ सफरर्स थे कि जो उन्होंने बोल दिया है, इन्होंने मानना ही है. तो ये जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, नेशनल मूवमेंट मीन्स कि व्हेन द पीपल दे फेल्ट द नीड टू गेट इंडिपेंडेंस, उस समय लोगों की जो थिंकिंग थी उसमें फिर कुछ चेंजेस आने शुरू हुए. एंड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री वाज टू बी मेड, तो उस समय एक ये जरूरत महसूस हुई कि एटलीस्ट वन इंस्टीट्यूशन should be there, one institution should be there where the people, they are having the say in the decision making process. कि कुछ सिस्टम ऐसा बनाया जाए, क्योंकि लोग ऑलरेडी जब ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड था, वो इतना डरे हुए थे, इतने एक्सप्लॉइटेड थे, वो डिसीजंस ले नहीं सकते थे अपने लिए, लोगों को चुन नहीं सकते थे, अपने लीडर्स चुन नहीं सकते थे. एवरीथिंग वाज फोर्स्ड ऑन देम, everything was forced on the people, right? So ये एक आप कह सकते हैं वहां पर सिस्टम जो था, that was running. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तब सबसे जरूरत ज्यादा थी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर जो लॉज भी बनते हैं, डिसीजंस भी बनते हैं, उसमें लोगों का अपना एक
से होना चाहिए, राइट। तो इसलिए ये जो हमारा पार्लियामेंट है ये एग्जिस्टेंस में आया। पार्लियामेंट जो है दैट इज आवर हाईएस्ट लॉ अथॉरिटी और लॉ मेकिंग बॉडी। जो पार्लियामेंट है हमारी एक लॉ मेकिंग बॉडी है, और ये जो लॉज हैं ये कौन बनाता है? ये वो लोग बनाते हैं जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं। तो इट रिवॉल्व्स अराउंड अस, इट रिवॉल्व्स अराउंड द पीपल। तो जिस पर्पस के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट की जरूरत थी, दैट पर्पस हैड बीन सॉल्व्ड, कि यहाँ पर लोग जो हैं उनके ही चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो हैं दे मेक द लॉज फॉर द पीपल। तो ये जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था उस समय से ही ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो जरूरत थी वो महसूस हुई, क्योंकि जो हमारे उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स से उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया कि जिस ढंग से द पीपल वर लिविंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स, दैट इज नॉट एट ऑल एन एक्सेप्टेबल थिंग। तो जब अब इंडिपेंडेंस मिल गई है तो उन्हें ये डर था कि अगर ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ना दी जाए, नहीं अगर लोगों को मिली, तो द पुअरर or the weaker section of the society again they will suffer the same plight which all the common people were facing or experiencing during the British rule। कि अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट कंट्री को नहीं दिया गया तो जो वीक हैं, जो पुअर हैं, वो शायद दोबारा उनको उनके भी आप कह सकते हैं कि दे विल नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन, दे विल नॉट हैव एनी से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये इतना एक कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत कह सकते हैं बहुत मुश्किल काम था उस समय कि ऐसा क्या किया जाए जहां पर एवरी पर्सन विल बी हैविंग इट्स हिज और हर से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी कंट्री है, ये सारे रिवॉल्व किस में करती है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस थिंग। लीडर्स ने डिसीजन ले लिया, लोगों ने मान लिया, राइट। quite possible decisions जो है that taken by the leaders that may be wrong, अगर लोग उसको आराम से एक्सेप्ट कर रहे हैं तो that is also not an indication of a healthy country, right। तो इस ढंग से एक सिस्टम की जरूरत थी जहां पर लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हो वो भी किसी कंट्रोल में, किसी लिमिट्स में ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि जिसको भी इन्होंने पावर्स दे दी हैं वो अपनी मर्जी से ही रूल करे जा रहा है, राइट। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम कह सकते हैं कि द नीड टू हैव दिस इंस्टीट्यूशन और पार्लियामेंट या ये तब महसूस हुई थी जब हमारे कंट्री में एक नेशनल मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हो चुका था। So as again what I said कि that why there should be a need for the people to decide। लोग डिसाइड क्यों करें? क्यों नहीं भाई जो हमारे किसी को भी हम चुन ले वो अपने आप ही डिसीजंस ले ले? तो इसका हम लोग हिस्ट्री इसकी कहां से ले सकते हैं? वी नीड टू गो बैक टू द टाइम व्हेन द इंडिपेंडेंस द प्रोसेस टू गेट द इंडिपेंडेंस वाज देयर, और यू कैन से कि इंडिपेंडेंस से पहले भी जो स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम क्या था कि उस स्ट्रगल के कारण लोगों को एक इंस्पिरेशन मिली टू गेट द फ्रीडम, टू गेट द इक्वालिटी, टू बी द लीडर्स, टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर तो ये लोग बहुत ज्यादा ही से कि डरे हुए, जैसे मैंने बताया था, कि रहते थे और उनको कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका कोई रोल नहीं होता था। वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। बट when the national movement was started, they had started criticizing the British government। लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, डिमांड्स पुट अप करनी शुरू कर दी। तो वहां से इनको एक इंस्पिरेशन मिली कि जब हम डिमांड पुट कर सकते हैं या जब एक क्रिटिसाइज करने का एक राइट मिल जाता है तो द थिंग्स दैट गोज बेटर। क्योंकि अगर ऐसी कोई पावर जिसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो वो इम्प्रूव ही नहीं करेगी, that will become an absolute power, right। So 1885 में वी नो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी जब वो बनी थी तो उसकी क्या डिमांड थी? दैट दे डिमांडेड
to be that the elected members should be there in the legislature with a right to discuss the budget and ask questions, right? जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिशर से क्या डिमांड की थी? That there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget. Legislature क्या होता है भाई? लेजिस्लेचर मीन्स जहां पर लॉज बनाए जाते हैं, तो हमारा पार्लियामेंट जो है दैट इज अ लेजिस्लेचर, राइट? सो एनी हाउ उस समय 1909 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें ये कहा गया कि ओके कुछ लोग जो हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, राइट? लेकिन उस समय अब ये जो नेशनलिस्ट है उनकी डिमांड्स और ज्यादा से ज्यादा होती जा रही थी, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो घबरा गए और उनको लगा कि अब अगर लोगों को ये राइट दे दिया कि वो डिसीजन ले सकते हैं तो the power of these Britishers would be reduced to an extent, right? So as mentioned ki in the independent India it was believed, or you can say the leaders, they felt that the people should participate in the decision making, right? So here decision making, it doesn't mean that the government can do whatever they want. Government can only do what the people want, right? And it was conveyed to the government through the directive principles that the government have to be sensitive to people's needs and demands, right? So इन सब के लिए सबसे पहली चीज जो थी वो ये थी कि लोगों को ये राइट दिया जाए कि वो अपने लीडर्स चुन सके। जब वो अपने लीडर्स चुन लेंगे तभी उन लीडर्स के थ्रू ये अपनी बात जो है ये मनवा सकेंगे, राइट? सो दैट वाज वेरी वेरी नेसेसरी। नाउ द बेसिक हम लोग जितना बात करते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक एंड सो ऑन, एंड व्हेन यू विल गो इन क्लास 9th ना तो आप लोग डेमोक्रेसी को बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। एनी हाउ हम लोग जितनी डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, द डेमोक्रेसीज टेक ऑफ पॉइंट इज desired approval and participation of the, right? It means कि the decision of the people creates a democratic government. हमारी democratic government जो है वो revolve ही करती है around the people, their needs, their aspirations, their demands. It run on this basic idea that the individual or the citizen is the most important person, right? You need to underline this, that the individual or the citizen is the most important person. Kindly manage with this. And that in principle, the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. Government या government के institutions जो हैं, they have to have this notion that the public welfare is their foremost duty, right? अब जो लोग हैं या जैसे कहते हैं कि इंडिविजुअल है या सिटीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लोग है। अब इनकी इंपॉर्टेंस कैसे उनको उसको मेंटेन किया गया कि दे हैड गॉट द राइट टू वोट। people we elect our representatives to the parliament. पार्लियामेंट एक जगह है जहां पर ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, वहां पर ये लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट? सो पार्लियामेंट जो है एज सच से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिल्डिंग है विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर। दे कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करते हैं, गवर्नमेंट को गाइड भी करते हैं,
right? So in this sense, people through their chosen representatives form the government and control it. तो हम लोग जो है, we people, we choose our representatives. These representatives in turn form the government, right? And so indirectly क्या हुआ, हम ही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, हम ही गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, right? And this is, you can say, the principle or the basic idea on which the democracy revolves, right? So in the next class, this is your parliament house, right? ये पिक्चर है आपके पार्लियामेंट हाउस की, राइट? इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है ये आउटर है पार्लियामेंट हाउस का, जो सेकंड पिक्चर है ये राज्यसभा का अंदर जो हॉल है वो है, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं. एंड दिस थर्ड वन इज द लोकसभा, दिस इज नोन एज द हाउस ऑफ पीपल्स ऑल्सो. आप इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या देखेंगे कि बिल्कुल सिमिलर है, कुछ खास डिफरेंस तो नहीं लग रहा है, बट यस, इसके जो कारपेट का कलर है ना, ये डेलिबरेटली जो है दैट हैज बीन चूजन. इसके बारे में हम लोग अब विल टॉक टुमारो, right?